हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी का टॉपिक ज्योमेट्री की 6th यूनिट एरिया की एक्सरसाइज 6। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। ABCD is a quadrilateral. The diagonal AC bisects the diagonal BD at E. Prove that triangle ABC and triangle ADC are equal in area. तो हम यहाँ पर एक quadrilateral मान लेते हैं, assume कर लेते हैं। So this is an quadrilateral, marking this as A, B, C and D. और हमारे पास डायगोनल AC और BD जिसका परपेंडिकुलर अभी हमने ड्रॉ नहीं किया है, दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज E हियर। और हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फ्रॉम D ऑन दिस AC, मार्किंग दिस एज M। और हम यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फ्रॉम B ऑन AC, मार्किंग दिस एज L। ओके, सो नाउ वी हैव दीज ट्रायंगल्स ADC एंड ABC। इन दो ट्रायंगल्स का हमको एरिया इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं। गिवन में है दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ diagonal AC and BD intersected at E। और हमको प्रूव करना है that area of triangle ABC is equal to area of triangle ADC। और कंस्ट्रक्शन में हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। सो ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड BL परपेंडिकुलर टू AC। नाउ तो ये क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, सो जरूरी नहीं इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो। सो इन ट्रायंगल BLE एंड ट्रायंगल DME, ओके, सो इन दोनों में एंगल L और M तो 90 डिग्री है एंड BE विल बी इक्वल टू DE। दिस इज गिवन, बाइसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, एंड एंगल दिस E विल बी इक्वल टू दिस E, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाय ASA ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो वहां से हम प्रूव कर सकते हैं दैट DM इज इक्वल टू BL। सो बाय CPCT हम इसके एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूव कर देते हैं। सो इन ट्रायंगल BLM एंड ट्रायंगल DBLE एंड ट्रायंगल DME, एंगल BLE is equal to angle DME because they are 90 degree, and BE is equal to DE because they bisect each other at E, bisector। और हमारे पास एंगल DEM is equal to angle BEL, they are vertically opposite angles। So therefore we can say that triangle BLE is congruent to triangle DME by ASA। So therefore by CPCT we can see BL is equal to DM। So by CPCT ये दोनों हमने equal प्रूफ कर दिए हैं। Now the area of triangle ABC अगर हमको लिखना है, so we write half, base is AC and height is BL, marking this as 1। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC लिखते हैं, so it is half base into height is DM।
दिस इज मार्किंग 2, बट BL इज इक्वल टू DM, सो ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे. सो फ्रॉम 1, 2 and this one is 3. We can say that area of triangle ABC is equal to area of triangle ADC. Hence proved. Question number 22. In the given figure, ABCD is a parallelogram. Prove that area of triangle APD is equal to area of quadrilateral BPCD. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन है that ABCD is parallelogram and we need to prove that area of triangle APD is equal to area of quadrilateral BPCD. So सबसे पहले हम यहाँ पर ABCD is parallelogram and AB will be parallel to CD and AD is parallel to BC. ये दो कंडीशन हम जानते हैं. And in this parallelogram, BD is the diagonal. So BD diagonal divides the parallelogram into equal area triangles. So we can say that area of triangle ABD will be equal to area of triangle BCD. So यहाँ से हमने ये दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूव कर दिया है. नेक्स्ट, ट्रायंगल BPD and BPC, they are on same base BP and between same parallel lines. So therefore we can say this area is equal to this area. So triangle BPD and triangle BPC are on same base BP and between same parallel lines AP and DC. So we can say that area of triangle BPD is equal to area of triangle BPC. So now this is part 2. Now we are going to add these two. So area of triangle ABD plus area of triangle BPD is equal to area of triangle BCD plus area of triangle BPC. So ABD and BPD, this completely makes an area of triangle ADP. Okay, and here BCD plus BPC, this makes this quadrilateral. So therefore area of quadrilateral BPCD, hence proved. Question number 23. In the given figure, XY is parallel to BC. Prove that area of triangle ACX is equal to ABY. ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है. तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं that XY is parallel to BC और हमको प्रूव करना है that area of triangle ACX is equal to area of triangle ABY. So प्रूफ के लिए सबसे पहले हम XY is parallel to BC and area of triangle BXY is equal to area of triangle CXY. So we can say triangles on the same base, triangles on same base XY and between
same parallel lines are equal in area. So यहाँ से हमने ये दोनों को इक्वेट कर दिया है. Now adding area of triangle AXY on both sides. So area of triangle BXY plus area of triangle AXY is equal to area of triangle CXY plus area of triangle AXY. So जब हम इसको ऐड करेंगे we get area of triangle AYB is equal to area of triangle CXA. Hence proved. Question number 24. In the triangle ABC, D and E are points on side AB and AC respectively. If area of triangle BCE is equal to area of triangle BCD, then prove that DE is parallel to BC. So यहाँ हम एक triangle बना लेते हैं. Marking this as A, B, C. और AB पर पॉइंट D है और AC पर पॉइंट E है. इसको हम ज्वाइन कर देंगे. नाउ वी हैव ट्रायंगल BCE हमको प्रूव करना है और BCD ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमको इक्वल गिवन है. देन वी नीड टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे. सो गिवन है in triangle ABC, D and E are points on side AB and AC, and we are given that area of triangle BCE is equal to area of triangle BCD. और हमको प्रूव करना है that DE is parallel to BC. सो यहाँ पर हम सबसे पहले थ्योरम 15 जो कि मैंने बताया था इसके फर्स्ट पार्ट में, बिल्कुल इनिशियल जब हमने ये यूनिट स्टार्ट की थी, ट्रायंगल्स विथ इक्वल एरिया ऑन द सेम बेस हैव द लाइंस पैरेलल. ओके, सो यहाँ पर मैं वो थ्योरम फिर से लिखूंगी. ट्रायंगल्स विथ equal areas on same base have same parallel lines in between. So ये जो ट्रायंगल्स है ये सेम बेस BC पर है और इनका एरिया भी इक्वल गिवन है. सो मैं यहाँ रिपीट करूंगी. एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ऑन सेम बेस BC. सो वी कैन से दैट इसका अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं यहाँ से और यहाँ से, मान लीजिए दिस इज DM एंड दिस इज EL, देन वी हैव हाफ बेस इज BC एंड इसके लिए एल्टीट्यूड हो जाएगा EL एंड हाफ इसके लिए हो जाएगा बेस BC एंड DM. सो यहाँ से दोनों कैंसिल होके वी हैव EL इक्वल टू DM, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दोनों में इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दैट DE इज पैरेलल टू BC. अगर दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, देयरफॉर वी कैन से दैट दीज लाइंस आर पैरेलल. Question number 25. Triangle ABC and triangle DBC are on the opposite sides of common base BC. If area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC, prove that BC bisects AD. So हम यहाँ एक common base बना लेते हैं. This is BC और इस पे हम एक triangle draw कर लेते हैं. Marking this as ABC
और दूसरा ट्राइंगल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, मार्किंग दिस एज डी, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज ए डी। ओके, सो बी सी बाइसेक्ट्स ए डी हमको बताना है, मार्किंग दिस एज ओ। सो गिवन है हमको दैट ट्राइंगल, area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC on common base BC. Next, we need to prove that BC bisects AD, and construction में हम लिख लेते हैं that draw, एक ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं और एक ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, मार्किंग दिस एज ए एल एंड दिस एज ए एम डी एम। सो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी। नेक्स्ट, इन प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC। तो अब सबसे पहले हम इसका एरिया लिखेंगे, हाफ बेस इज BC, हाइट इज AL, सिमिलरली हाफ BC इंटू हाइट इज DM। सो यहाँ से BC और हाफ कट जाएगा, AL इज इक्वल टू DM हमको यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ वील टेक टू ट्राइंगल्स in triangle ALO and triangle DMDO, we can say that AL is equal to DM, ये अभी हम प्रूव कर चुके हैं, and angle ALO is equal to angle DMO, that is 90 degree, and angle AOL is equal to angle DOM, which is vertically opposite angle। so यहाँ से आप by ASA triangles are congruent proof कर सकते हैं। so therefore triangle ALO is congruent to triangle DMO by ASA। so we can say that AO is equal to DO by CPCT। so ये दोनों लाइन्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी हैं, hence we can say that, therefore we can say that BC bisects AD, hence proved। Question number 26, if the diagonal of a quadrilateral divides the quadrilateral into 4 triangles of equal area, then prove that quadrilateral is a parallelogram। so यहाँ पर हम एक quadrilateral ड्रॉ कर लेते हैं, marking this as A, B, C, D, और यहाँ हम डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं इंटरसेक्टिंग एट O। सो यहाँ हमको गिवन है दैट डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड द क्वाड्रिलेटर इनटू 4 इक्वल ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC is equal to area of triangle COD is equal to area of triangle DOA। ये चारों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। सो टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है। सो स्टार्टिंग विद द प्रूफ, यहाँ पर हमको एक तो ये एरिया इसके इक्वल है और एक ये एरिया इसके इक्वल है, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिखूंगी कि हम ऐड कर पाए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल COD is equal to area of triangle DOA। So therefore area of triangle AOB plus area of triangle BOC will be equal to area of triangle COD plus area of triangle DOA। So this becomes area of triangle
ABC, and this becomes area of triangle CDA. So therefore we can say that diagonals bisect the quadrilateral ABCD into triangles of equal area. Therefore, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Hence, proved. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर वो लिंक नहीं भी ओपन होती है सो यू कैन सर्च मी डायरेक्टली बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग ऑन टेलीग्राम. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.